if you do not want to miss the best moments that come out of these raw, completely unplanned conversations that I have with these very interesting people, then make sure you subscribe to this channel, PGX Clips, and press the bell icon up so that you know the next time we post. One of the most underrated concepts in food, and food में ना हम ये बोलते रहते हैं कि ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, इससे होता है, वो होता है. बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फैलती रहती है. बहुत ही सिंपल सी बात है जो हमने वर्कआउट के बारे में बात की और यहाँ पे भी वैलिड है. डाइवर्सिटी ऑफ फूड. हर तरह के खाने में, हर फूड ग्रुप में कुछ न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिटिव है. अगर आप वो अपनी लाइफ से पूरा निकाल दोगे तो आप उस टाइप के न्यूट्रिशन को पूरे अपनी तरह लाइफ निकाल दोगे. हाउ इज इट फेयर? योर बॉडी नीड्स डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, राइट? एंड वी नो एनीथिंग इन एक्सेस इज बैड. Right. Anything in excess is bad. So I think if you just follow these basic principles, आपका खाना ठीक होने लग जाएगा. Right? And of course there are many more things when we get into it, like very very simple things, like for example अब food की बात करते हैं, क्या क्या लोगों को misnomers होते हैं and क्या क्या discussion होते रहते हैं. We said anything excess is bad. Let's say आपकी body कुछ एक बेसिक रूटीन है उसका, और बाय द वे सबका रूटीन अलग होता है. आपका, मेरा, सबका अलग होता है. पीपल डोंट रियलाइज दैट. कोई बोलता है इतना ग्राम प्रोटीन पर केजी वेट खाना चाहिए तो उतना खाते रहते हैं. आपका एक्टिविटी के लिए कितना है, आपका मसल मास बनने के लिए कितना प्रोटीन चाहिए, यू हैव टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद दैट, राइट? सो दैट्स द फर्स्ट थिंग. आई डोंट नो इफ यू नो दिस, एक्सेस ऑफ प्रोटीन इंटेक. प्रोटीन इंटेक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मसल मास बिल्डिंग, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग हेल्दी फॉर लॉन्गर. Right. Excess of protein intake is also not good for your body. It converts into carbs, which you don't want too much in your body. People don't realize that. Neuroglucogenesis ऐसे कुछ कहते हैं ना? मतलब ज्यादा खाते रहते हैं. Right. ऐसे नहीं होता है. सिर्फ प्रोटीन लेने से थोड़ा मसल मास बनता है. Anything that is so you will take protein, whatever the body needs for building your muscle mass or other functions, it will use. The remaining, it doesn't know what to do. Our bodies are not designed to store protein, so you can't take excess protein. Carbs की बात करते हैं. Carbs में every carb is bad. Either people on the extreme saying carb से होता क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर बोलते हैं सब खराब है carbs. You can't live on extremes. You have to understand there are some carbs not good for your body, like refined flour, मैदा वगैरह, and there's some complex carbs which are very good for your body, like sweet potato, brown rice. चाहिए होते हैं बॉडी के लिए, बॉडी की एनर्जी फंक्शन के लिए चाहिए होती है. You will not be able to function properly if you actually don't take enough of it. ऐसा लगेगा कि आप ले रहे हो, बट आपका माइंड कॉग्निटिव उतना अच्छा नहीं चल रहा होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा. ब्रेन फॉग हो रहा होगा, Exactly. पता नहीं चलेगा. Right. Similarly फैट्स, या तो लोग बोलते हैं फैट्स क्या फर्क पड़ता है. आई एम एक्चुअली गॉट शॉक्ड बाय द नंबर ऑफ पीपल इन माय पीयर ग्रुप who don't understand what is wrong with this kind of food, let's say, or processed food, कि वो कितना खराब है. फिर दूसरे एक्सट्रीम पे जाओ तो मैंने सारे फैट्स बंद कर दिए. It doesn't make sense. Yeah. Like there are some good fats which your body needs. Yeah. Like unsaturated fats, mono or poly, your body needs those to function. Yeah. Your brain works on fat. It's all fat. This is all fat. Exactly. Yes. Right. Exactly. पता ही नहीं होगा लोगों को. आप पूछ लेना अपने व्यूअर से, पता ही नहीं होगा लोगों को. So I think we have started to live on these extremes, whereas life is actually slightly more simpler when it's balanced. कि सब करो, कुछ excess में मत करो. And the second thing I say is keep listening to your body. Your body gives you a lot of signals कि आज दिमाग सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है. Like in fact deep sleep has huge relation to cognitive function. आप जब डीप स्लीप करते हो सिर्फ रिपेयर नहीं होता बॉडी में, जो सारा टॉक्सिन ब्रेन में होता है वो सारा निकलता भी है. बट पीपल डोंट रियलाइज दैट. सो वन यू लिसन टू योर बॉडी, सेकंड यू मेजर कि यार अच्छा मैं ये खा रहा हूँ या मैंने ये बंद किया है, व्हाट इज इट डूइंग टू मी. सो यू कैन मेजर थ्रू अ वेरिएबल लाइक दिस, और यू कैन गेट अ ब्लड टेस्ट डन. सेम फॉर सप्लीमेंटेशन. पीपल कीप ईटिंग सप्लीमेंट्स. अच्छा उसने बोला ये खाते हैं, उसने बोला ये खाते हैं. आवर बॉडी जेनेटिकली इज डिस्पोज फॉर डिफरेंट एब्जॉर्प्शन ऑफ द सेम थिंग. Some people don't even realize vitamin D खाते रहते हैं, टॉक्सिक लेवल पे चला जाता है, which is so harmful for your body. The only way to know it is a blood test. I don't know of anyone, like anyone, मतलब ऐसे 2-3 लोगों के साथ मैं जानता ही नहीं जो अपना हर 6 महीने में ब्लड टेस्ट कराते होंगे एक बार. So I think you have to measure. Actually life changing है. Blood tests हर 3 महीने में कराना. As I got closer to 30, I'm still not 30, but like last year sometime I decided, also because मेरे को health issues थे, I was like मैं ना blood test कराऊंगा हर 3 महीने में. I found out in January I was pre-diabetic. Then I went on that journey where I was like, boss, ये नहीं हो सकता. So all of this weight gain, sleep apnea, pre-diabetes, all of this is coming together. My father has diabetes, my grandfather has diabetes. ये तो इंडिया में वैसे ही बहुत चलता है, नहीं होने देना. And then I went on a huge arc. I'm still on that journey. और हर 3 महीने में मैं ट्रैक करता हूँ. I have seen what happens when vitamin D levels are up and when they're down. And vitamin D being down is a huge issue, bro. Yeah. Like your injuries become more, suddenly you are more fatigued, पता नहीं चलता. और vitamin D maintain करना, I think it's a silent vitamin epidemic in the country. Vitamin D और B12 किसी का पूरा नहीं है. नहीं सब चेक करा लो एक बार. 500-700 रुपए का टेस्ट है और एक लाइपोसोमल या कोई एक गोली लेके ना विटामिन डी की डॉक्टर से प्लीज खा लो.
For me it was life change. My first step to fixing sleep was vitamin D fixing. क्योंकि मेरा vitamin D 3-4 वो इतना कम था. हाँ, and then I started having वो जो 60,000 IU वाला and it started going up and I was like now I'm sleeping better. Sleep was such a great symptom. मैं एक एक चीज ट्रैक करके बता सकता था. इसको चेंज किया, देखो नींद बेटर हो गई, अगले दिन अच्छे फ्रेश उठ रहे हो. And so yeah, I get that. I completely get that. मेरे को लगता है लोग ना ये एक्सट्रीम फिलोसफी ऑफ ईटिंग में तब घुसते हैं भाई, बिकॉज दे वांट, सी पीपल वांट सिंप्लिसिटी. मेरे को एक दो सिंपल रूल बता दो, मैं वो सिंपल रूल फॉलो कर लूंगा. नाउ यू आर आल्सो डेस्परेट, इतना टाइम हो गया, आई हैव डन नथिंग, सो यू हैव दिस एक्सट्रीम सिंपल रूल, नो कार्ब्स, पॉसिबल है, नो फैट, राइट. एंड इंस्टेड 3-4 सिंपल रूल ये है, अपने खाने को फ्रंट लोड कर दो प्रोटीन के साथ. ईट प्रोटीन फर्स्ट, ईट फाइबर फर्स्ट, यू विल ईट लेस. ट्राई एंड ईट एज मच इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द डे एज अपोज टू द सेकंड हाफ ऑफ द डे. एंड ईट नेचुरल सोर्सेज ऑफ ऑल फैट, प्रोटीन एंड कार्ब्स. फ्रूट्स खाओ, घी खाओ, कितना खा लोगे, बहुत ज्यादा खा ही नहीं सकते. एंड यू आर डन, गुड टू गो. लाइक मेरे को ये 2-3 रूल हैव हेल्प्ड मी ड्रॉप वेट एंड फील बेटर एंड स्लीप बेटर. टोटली एग्री. आई थिंक और शुरू ऐसे ही करना चाहिए. मुझे लगता है 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है. एक तो एक्सट्रीम पे जब जाते हैं ना, जैसे हमने बोला कि अभी आज लगा कि अब कल से, आज कुछ देख लिया, कल मोटिवेट हो गए, कल से सब बंद कर दूंगा. नो शुगर, नो अल्कोहल, नो स्मोकिंग, ऑल ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग्स. दे आर एक्सट्रीम्स. एंड आई ऑलवेज से दिस, पिक अप हैबिट्स और पिक अप थिंग्स दैट यू कैन फॉलो फॉर लाइफ. तभी वो कंपाउंडिंग इफेक्ट आता है. ऐसी चीज़ें मत उठाओ जो आप उठाओ 2 हफ्ते में फिर फ्रस्ट्रेट हो जाओ, यू कांट कैरी दैट फॉरवर्ड, यू विल गो बैक टू योर बैड हैबिट्स or the earlier habits, there will be no improvement that you'll see and you'll be stressed about it. वो सब नहीं चलता है. And when you start, अगर आज कुछ नहीं किया है, जैसे for example 3 years back what I started with my life, मैंने वो शुरू किया, it helped me. उसके बाद बॉडी अडेप्ट कर गई. Then I went to the next level. अच्छा मैं और थोड़ा सीखता हूँ कि अब नेक्स्ट मुझे क्या अच्छा करना चाहिए, फिर एक नेक्स्ट फेज करना चाहिए. So I think you should do it by phases. In the beginning itself you can't go to extreme measures and start from, like, you start a journey from 0, take it to 1, take it to 10. You can't start from 10. Right. It doesn't make sense. It doesn't work for most people. Yeah. मतलब वो उसको लाइफस्टाइल चेंज इसीलिए कहते हैं. आई थिंक बिकॉज आप लाइफस्टाइल लेवल पे अगर फिक्स कर लो, यू हैव लाइफ लॉन्ग रिटर्न्स. ये इंटरवेंशन लेवल पे फिक्स नहीं होता, एक साथ घुस के नहीं होता. यू हैव टू स्लोली मूव दैट आर्क, राइट? इंटरेस्टिंग. Guys, trust me, I cannot give you the beauty of this conversation in just this one clip. If you like this clip, then you have to go to our main channel and subscribe to it and press the bell icon, because we post some amazing conversations for you on that channel.